হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো। নীতিশ রাজপুতের একটি ভিডিও হোয়াই উই হাইট পুলিশ খুবই ভালো লেগেছে এই ভিডিওটি। তো চলুন সেই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। आधे से ज्यादा कांस्टेबल इन्होंने घरों में लगा रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मेम साहब को बाजार छोड़ के आ रहा है, क्योंकि नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल जाएगा, राइट। झेलना हमें और आपको ही पड़ेगा। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन लोगों को अगर आप सैल्यूट करवाओगे तो वहां पे एक पढ़ा लिखा आईपीएस भी बेवकूफ ही लगेगा। कोई भी पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए नहीं आता, वो सब फेसबुक और ट्विटर के बायो में लिखने के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, ये सब शेरों की तरह। এখানে বলা উচিত ছিল মোস্ট অফ দ্য পলিটিশিয়ান, সেটা বলা উচিত ছিল। এখানে সবাইকে বলে দিয়েছেন উনি। তো সবাই না, অবশ্যই কেউ কেউ আসে যে জেনুইনলি দেশের সেবা করতে চায়, মানুষের সেবা করতে চায়। तरह लड़ते हुए शहीद हुए कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना चालू हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों में एक अलग तरीके की नाराजगी है। पुलिस को देख के लोग सेफ फील करने की बजाय घबराते हैं। अगर कहीं पे पुलिस खड़ी है और आपके सामने दूसरा रास्ता अवेलेबल है तो हर कोई प्रेफर करता है कि उस दूसरे रास्ते से ही जाए। সো ট্রু। মানে কোনো আপনি যদি কোনো একটি সমস্যায় পড়েন এবং সমস্যায় পড়ার পর যদি আপনার কাছে দুইটি অপশনই খোলা থাকে, যে একটি হচ্ছে থানায় যাওয়া আর একটি হচ্ছে সামাজিকভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে সেটেলমেন্ট বলেন বা মানে যেই সমস্যায় পড়েছেন সেই সমস্যা থেকে সমাধানের পথ বের করা বলেন, সেদিকে যদি যাওয়া যায় তাহলে আপনি অবশ্যই সেই দ্বিতীয়টি বেছে নেবেন। অর্থাৎ আপনি থানায় না গিয়ে আপনি চাইবেন সেটেলমেন্টে যেতে বা অন্য কোনো উপায়ে সেই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে নিতে। দিস ইজ সো ট্রু। এটা বাংলাদেশের জন্য মানে খুবই প্রাসঙ্গিক একটি কথা। বাংলাদেশের মানুষও থানায় যেতে খুবই ভয় পায় এবং ভয় পাওয়ার অনেক কারণও রয়েছে। যেমন পুলিশের ঝামেলায় জড়াতে চায় না, কারণ জানে এইখানে গেলে ঘুষ টুস সহ নানান ধরনের বিষয় আসলে চলে আসে। হয়তোবা সবাই না, কিন্তু তারপরেও অনেক পুলিশ অফিসাররা এই ঘুষ। আর আপনি মানে থানায় যাওয়ার পর কয়জনই থানায় একটি অভিযোগ যদি নিয়ে যান তাহলে কতজনই বা মানুষ আছে যে আপনার বিনা টাকায় বা বিনা কারো রেফারেন্সে থানা সেই অভিযোগটি আসলে গ্রহণ করে? কতজন মানুষই বা আছে? খুবই হাতে গোনা সামান্য। যাই হোক, तो इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है? अब ऐसा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे करप्ट लोगों ने एक साथ पुलिस सिस्टम ज्वाइन कर लिया हो। इनफैक्ट आप बड़े से बड़ा घोटाला अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स के नाम मिलेंगे, लेकिन पुलिस इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज तक कोई बड़ा करप्शन स्कैंडल नहीं हुआ। पुलिस वाले को 12 से 16 घंटे काम करना होता है बिना किसी वीक ऑफ या फिर ओवर टाइम पे के। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से पुलिस वाले को 24 घंटे अवेलेबल रहना अपनी जॉब के लिए। हम लोगों के लिए दिवाली और होली एक त्योहार होता है, लेकिन एक पुलिस वाले के लिए ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट और एक्स्ट्रा वर्क होता है। पुलिस वालों को कभी भी होली दिवाली पे छुट्टी नहीं मिलती। কারেক্ট। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এখানে ইন্ডিয়াতে যেহেতু সেহেতু মানে হোলি বা দিওয়ালি তাদের যে ফেস্টিভ্যাল রয়েছে সেগুলোর কথা বলছে, কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আপনি শবে বরাত বলেন, ঈদ বলেন, পূজা পার্বণ বলেন, সবাইকে ছুটি দেয়া হয় না। হয়তোবা সামান্য কিছু অফিসাররা, সামান্য কিছু পুলিশ যারা ছুটি পান, আর সবাইকেই ডিউটিতে থাকতে হয়। আপনি দেখবেন আপনি ঈদের নামাজ পড়ছেন, এদিকে আপনি ঈদগাহ ঈদের নামাজ পড়ছেন, কিন্তু অন্যদিকে পুলিশ ইউনিফর্ম পরে আপনার ডিউটি করছে, পাহারা দিচ্ছে। দিস ইজ সো ট্রু। এবং 24 ঘন্টা অ্যাভেলেবল থাকতে হয়, এবং এই অ্যাভেলেবল থাকার জন্য ওভার টাইম যে মানে ওয়েজেস যেটা রয়েছে, সবার ক্ষেত্রে ওভার টাইম ওয়েজেস রয়েছে, শুধুমাত্র এই পুলিশের ক্ষেত্রেই সেটা अवेलेबल नॉय। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो डेथ होती है उसमें आउट ऑफ 62 इंडियन पुलिस 41th रैंक पे है। इसका मतलब कि अगर आप कंट्री के बाहर जाते हैं तो वहां की पुलिस से आपको ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू इंडियन पुलिस। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस डिपार्टमेंट का हर एक चीज में कि कोई भी कंट्री इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में छोटे से छोटा लूप होल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। 1947 से लेकर आज तक 34,844 पुलिसमैन लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए।
विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, ये सब शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन आज की डेट में पुलिस की कंडीशन ऐसी है कि एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सोशल लाइफ एकदम ख़त्म है, वीकली ऑफ नहीं मिलता है, सैलरी बहुत कम है, और 16-16 घंटे जिसके लिए वो काम करते हैं आखिर में जाके उसी से गाली मिलती है। अगर आप अपने आसपास किसी पुलिस वाले से बात करेंगे तो कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी पुलिस में आए। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कोई इन सब चीज़ों पे क्यों ध्यान देगा जब उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस पुलिस के साथ बहुत ही खराब रहा है। अब पुलिस घूस लेती है, गुंडागर्दी करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती है, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के पुलिस के साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब पहली बार অবশ্যই এই জিনিসগুলো তো রয়েছে, যেমন ধরুন রিপোর্ট লিখে না, কোনো রেফারেন্স ছাড়া, মানে কারো অনুরোধ ছাড়া, তারপর বা টাকা ছাড়া, বা মানে ঠিকমতো সুন্দরভাবে সার্ভিস যেটা দেওয়ার কথা সেই সার্ভিস দেয় না। কিন্তু এই জিনিসগুলোর পেছনে তো কোনো না কোনো কারণ রয়েছে, সেই কারণগুলোই ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছে। इंडियंस ने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया तो ब्रिटिशर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। फिर उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट लेके आए, जिसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उनको दबाना और कंट्रोल करना था। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सिस्टम अच्छा होता तो वो लोग अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करते। लेकिन 18 রাইট, ব্রিটিশে যদি আপনার এই যে লটা তৈরি করেছে, যে অ্যাক্টটা তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান পুলিশদের জন্য, এই অ্যাক্ট যদি এই ল যদি ভালো হতো তাহলে অবশ্যই তারাও তাদের দেশে এই লটি ইমপ্লিমেন্ট করতো। কিন্তু তারা তাদের দেশে এই লটি ইমপ্লিমেন্ট না করে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ানদের জন্যই এই লটি কেন ইমপ্লিমেন্ট করলো, তারা তাদের দেশে সেই লটি ইমপ্লিমেন্ট করছে না কেন, সেটি একটি বড় কোয়েশ্চেন। অবশ্যই এই ল তাদের জন্য, পুলিশের জন্য ভালো না, বা তারা চাচ্ছে তারা রুল করতে পুলিশ দিয়ে, সেজন্যই তারা এই লটি ইমপ্লিমেंट করেছে इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एनीवे 1961 से लेके आज तक हमारी कंट्री में वही सेम सिस्टम अभी तक चल रहा है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे नेताओं को सूट करता है। जो एक्सपेक्टेशन ब्रिटिशर्स की थी वही सेम एक्सपेक्टेशन हमारे नेताओं की भी है, लोगों को कंट्रोल करना। क्योंकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पुलिस को जो पावर्स दे रखी हैं वो काफी हैवी हैं। जब भी कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है, और मैं सिर्फ करप्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसके दो ही मोटिव होते हैं। एक, जो करंट सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में रखना, और दूसरा जो उसका नेक्स्ट इलेक्शन है उसको सिक्योर करना। सिक्योर करना यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए तो बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो पुलिस के पास पावर्स हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं लोग। अब कंट्रोल ये जुडिशरी सिस्टम को भी करना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी सिस्टम एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन ये सब नेताओं के हाथ में नहीं रहते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन ये सब नेताओं के हाथ में रहते हैं, और यहीं से सारी चीज़ों की जड़ स्टार्ट होती है। किसी पुलिस में ঠিক এই জন্য বাংলাদেশেও আপনার বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। যদি বিচার বিভাগও সরকারের অধীনস্থ হতো তাহলে আপনার মন্ত্রী মিনিস্টার বলেন তারা আসলে যে এই আপনার জুডিশিয়ারি সেক্টরটা যেই মিনিস্ট্রির আন্ডারে থাকতো সেই মিনিস্ট্রি চাইলে যে কাউকে বদলি করতে পারতো, ট্রান্সফার করতে পারতো, পোস্টিং দিতে পারতো। কিন্তু এই জিনিসটা ইন্ডিয়াতে যেরকম পাকিস্তানেও সেই রকম এবং বাংলাদেশেও একই রকম, যে বিচার বিভাগটা সম্পূর্ণ আলাদা। বিচার বিভাগ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স। मैन का प्रमोशन या ट्रांसफर इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना काबिल या कितना मेहनती है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बात मानता है, भले ही वो बात सही हो या गलत। अगर किसी नीम के पेड़ को कोई नेता आम का पेड़ कह रहा है तो आपको आम का पेड़ तो उसको कहना ही है, साथ में ये भी कहना है कि उस पर 2 आम लगे, अगर आज्ञा हो तो तोड़ के लाऊं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना चालू हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि जो भी नेता है वो अपने आसपास उन लोगों को चाहता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। फिर उन्हीं पुलिस वालों की पावर को यूज करके किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस ग्रुप की अकल ठिकाने लगानी, इन सब चीजों पे डिसीजन बनाया जा सके। आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है ऑपोजिशन के लोग अलग अलग केसेस में अंदर जाना चालू हो जाते हैं। नेताओं का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। इसको लेके मिस्टर प्रकाश सिंह जो कि एक्स डीजीपी रहे हैं यूपी पुलिस में, इन्होंने एक पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट भी किया, और मिस्टर प्रकाश सिंह वो केस जीत भी गए। फिर 22 सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका इंटरफेरेंस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए,
और 7 इंस्ट्रक्शन सारे स्टेट्स को दिए। ऑन पेपर तो सबने इस चीज को एक्सेप्ट किया क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी और एक कमेटी बनाई जिसको लीड किया जस्टिस थॉमस ने, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो मैं एग्जैक्ट वर्ड आपको बताता हूँ। वी आर डिसमेड बाय द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट टू द कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। तो किसी भी गवर्नमेंट ने इसको माना ही नहीं। और जो लोग अलग अलग पार्टियों की वकालत करते हैं वो ईयर पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ना ये तब लागू हुआ था और ना ये अब लागू हुआ, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं। और पुलिस डिपार्टमेंट एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे, এটা কিভাবে চাবে? এই রকম যদি হয়ে যায় যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে মানে সরকারের কোনো সে থাকবে না, তাহলে তো সমস্যা। তাহলে তো মানে কাউকে নেতাদের কথায় কাউকে অ্যারেস্ট করা যাবে না, কাউকে ছাড়ানোও যাবে না, কিছুই করা যাবে না। পুলিশ তাদের ইচ্ছা মতো যেটা করার সেটাই করবে। ইচ্ছা মতো বলতে এখন তারাও যদি চায় তারা মানে গুন্ডাগিরি যেটাকে বলে সেটাও করতে পারে, আবার তারা যদি চায় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ল, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার সিস্টেম তারা কাজ করতে পারে। এখন কতজন আছে এইভাবে অ্যাকর্ডিং টু ল চলবে, বা এটাও তো একটা বড় প্রশ্ন। মানে আপনি যদি সব কিছু পুলিশের উপর ছেড়ে দেন তাহলে পুলিশ তো মানে তখন মানে রাজা বাদশার মতো হয়ে যাবে। সেটাও একটা ব্যাপার যে সব কিছুই তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় কি না। है तो उसको लागू कर सकती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना। एक तो दिक्कत ये आ जाती है कि एक हैबिट है हम लोगों की कि एक बार हम जिस पार्टी को पकड़ लेते हैं, फिर दोस्ती यारी में कोई बहस हो, चाहे कोई ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे में हम उसी को सपोर्ट करेंगे। भाई जब इतने सालों से उस पार्टी के लिए आप बहस कर रहे हो तो एक बार पार्टी से भी क्वेश्चन पूछ लो, ये छोटी सी चीज है क्यों नहीं लागू कर रहे। कोई भी पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए नहीं आता है, वो सब फेसबुक और ट्विटर के बायो में लिखने के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से पावर जाए। এটা ঠিক যে কেউ পাওয়ার হাত থেকে চলে যাবে সেটা চায় না, কিন্তু এটা ঠিক না যে মানে সবাই শুধুমাত্র পাওয়ারের জন্যই বা কন্ট্রোল করার জন্যই বা টাকা বাড়ানোর জন্যই পলিটিক্সে আসে। I completely disagree with that. There are few people who may think like that, but not all of them. ये सारी चीजें तभी लागू होंगी जब हम लोग चाहेंगे। आज की डेट में अगर ये सारी पार्टियों में माहौल बन जाए कि जो ये चीज इंप्लीमेंट करेगा वही जीतेगा, तो 101% ये पार्टियां करेंगी। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो जो कि इंडिपेंडेंट है, आर्मी हो गया, जुडिशरी हो गई, हमारी इलेक्शन कमीशन हो गया, इसमें फिर भी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन जिस चीज में नेता हाथ डाल देते हैं उस डिपार्टमेंट का बुरा टाइम चालू हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में 92% लोग कांस्टेबल हैं, 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ईयरली जो आपकी सीटीसी होती है 2 लाख। এটাও ঠিক যে মানে উনি যে কথা বলছেন যে নেতা লোক যেই সেক্টরে হাত দেয় ওই সেক্টরটার খারাপ সময় চলে আসে, কিন্তু এই নেতা লোক ছাড়া তো মানে দেশের যত বড় বড় জিনিস বলেন, যত বড় বড় আপনার অর্জন বলেন, সব কিছুই এই নেতাদের মাধ্যমেই হয় আলটিমেটলি। এটাও মানে স্বীকার করতে হবে, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। মানে দেশের সবচাইতে বড় বড় যে অর্জন, সেই অর্জনগুলো কিন্তু আসলে এই থ্রু পলিটিক্যাল পার্সনই আসে বা থ্রু পলিটিক্যাল ডিসিশনেই হয়। 83,960 यानी मंथली आपका हो गया 23,660। और अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 25,000 से 30 के बीच में आपकी सैलरी होती है पर मंथ। उसके बाद 12 से 16 घंटे के लिए जब आप बाहर निकलते हैं तो आप कितनी भी कंजूसी करें आपका 200 से 250 रुपये उसमें लगता ही लगता है। फिर जो क्रिमिनल मिलते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, कोई बॉडी मिली है नहर से तो उसका खर्चा। मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से बात करी तो ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि उसका रिइंबर्समेंट होता नहीं। हर स्टेट का अलग है, लेकिन अगर हम एवरेज लें तो एक पुलिस स्टेशन को मंथली 110 लीटर पेट्रोल मिलता है, और एक दिन का अगर हम देखें तो 3.6 लीटर मिलता है। अब उस 3.6 लीटर में पूरे एरिया की सिक्योरिटी देखनी है, पेट्रोलिंग करनी है, जो कैदी है उनका ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है। और वहीं बात नेताओं की करें तो एक मंथ का 250 लीटर उनको मिलता है। कई पुलिस स्टेशन ऐसे भी होते हैं जिनको बिजली का बिल भरने तक में दिक्कत आती है। अभी रिसेंटली नोएडा में 2 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिनका बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनकी लाइट काट दी गई। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। अब जुगाड़ का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि जो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल लगने लगती है। मान लो आप एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हो और आपने सारी की सारी एफआईआर लेना चालू कर दिया,
तो जैसे ही आप एफआईआर लोगे, सबसे पहली चीज़ तो आपका काम बढ़ेगा। आपको जाके इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे, कई महीनों तक आपको फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा आप एफआईआर लोगे उतनी ज़्यादा खराब आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। इसका मतलब कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी खराब आपकी परफॉर्मेंस होगी। और दूसरी चीज़, आपका पूरा का पूरा जो स्टेशन है वो बदनाम होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एफआईआर उतना ज़्यादा क्राइम रेट माना जाएगा। 144 पुलिस वाले 1 লাখ। ঠিক এই এই একটা জিনিস মানে এই একটা জিনিস হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আমাদের অঞ্চলে বলে বা আমাদের এই দেশে বলেন দেখবেন অমুক শ্রেষ্ঠ অফিসার হয়েছেন পুলিশের মধ্যে অমুক এই ওসি জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওসি নির্বাচিত হয়েছেন ওই জেলার মধ্যে এই এসপি শ্রেষ্ঠ এসপি নির্বাচিত হয়েছেন। এটা কিসের ভিত্তিতে? ক্রাইম রেটের ভিত্তিতে হয়ে থাকে যে উনার থানায় ক্রাইম রেট সবচেয়ে কম বা এই এলাকায় ক্রাইম রেট সবচেয়ে কম, সেই জন্য উনি ওনার পারফরমেন্স ভালো এবং উনি শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন জেলায় বলেন আর দেশে বলেন। কিন্তু ডিপ ডাউন এটা কেউ চিন্তা করে না যে উনি তো আসলে এফআইআরই নেননি, উনি তো আসলে অভিযোগটি গ্রহণ করেননি। ওনার থানায় অভিযোগ গ্রহণ করতে যদি কেউ নিয়ে যায় তাহলে সেই অভিযোগটি উনি নিতে হয় কোনো বড় নেতার সুপারিশ প্রয়োজন হয়, নয়তোবা অনেক টাকার প্রয়োজন হয়, যার কারণে মানুষ অভিযোগই দেয় না এবং মানুষ পুলিশকে এড়িয়ে চলে। ক্রাইম হলে, কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে বা কোনো যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন না হয় তাহলে মানুষ থানাকে এড়িয়েই চলে। এই জিনিসটা দেখেন না যারা এই শ্রেষ্ঠ ওসি শ্রেষ্ঠ এসপি নির্বাচিত করেন উনারা। এই জিনিসটা দেখেন না যে উনি আসলে কতটি এফআইআর নিয়েছেন বা কতটি এফআইআর নেননি, এই জিনিসটা উনারা দেখেন না। ওনারা শুধু এই ক্রাইম রেটের ভিত্তিতেই অমুক শ্রেষ্ঠ তমুক শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত করেন। এই প্যাটার্নটা কিন্তু বাংলাদেশেও রয়েছে এবং এটি খুবই রেলিভেন্ট। लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, वहीं 56,944 पुलिस वाले 20,828 वीआईपी नेताओं की सिक्योरिटी देख रहे हैं। इधर 663 लोगों पे एक पुलिस वाला है, उधर 3 पुलिस वाले एक नेता को संभाल रहे हैं। सिक्योरिटी का जो एक्चुअल पर्पस है, अगर किसी को रियल लाइफ थ्रेट हो तो उसके लिए सिक्योरिटी है, अगर किसी को रियल लाइफ थ्रेट नहीं है वो भी 3-3 गनर लेके घूम रहे हैं। आधे से ज्यादा कांस्टेबल इन्होंने घरों में लगा रखे हैं, कोई सिलेंडर भरवा रहा है, कोई मेम साहब को बाजार छोड़ के आ रहा है, मजदूरों से भी बुरा हाल कर दिया है। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? ঠিক এই জিনিসটাও মানে আমাদের নেতাদের প্রটোকল দিতে দেখবেন অনেক পুলিশ অফিসার চলে যায়, থানায় কাজ করবে কি ইনভেস্টিগেশন করবে কি সেই জিনিসটা না করে প্রটোকল দিতে অনেকেই ব্যস্ত থাকে। देखिए, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से जानती है, दे आर ट्रेन्ड एंड केपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन। अब कोई अनपढ़ आदमी अगर उनके काम में इंटरफेयर करेगा तो वहां दिक्कत आएगी ही आएगी। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन लोगों को अगर आप सैल्यूट करवाओगे तो वहां पे एक पढ़ा लिखा आईपीएस भी बेवकूफ ही लगेगा। दूसरी चीज, क्राइम रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नहीं है, हम लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी है। कास्ट के नाम पे लोग क्रिमिनल का सपोर्ट करते हैं, किसी फेवरेट पार्टी का क्रिमिनल हो तो उसको सपोर्ट करते हैं। पहले होता था अगर रिश्तेदारी में कोई क्रिमिनल निकल जाए तो लोग शादी का कार्ड तक नहीं देते थे, लेकिन आज की डेट में ये लोग रोल मॉडल हो गए हैं, और ये सारी चीजें हमें ही बैकफायर करेगा, क्योंकि नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल जाएगा, झेलना हमें और आपको ही पड़ेगा। लास्ट में बस एक ही चीज कहूंगा, मालीमत कमेटी हो गई, पद्म भैया कमेटी हो गई, रिबैरो कमेटी हो गई, इन सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेके, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने की। इस पिक्चर को देख के आप समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से मदद कर रही है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने के लिए। রাইট। তো লাস্টে উনি যে কথাটি আসলে বলেছেন যে মানে আপনার একটি পিকচার দেখিয়ে, যে এই পিকচারটি আমি আবার নিয়ে আসি, এই পিকচারটি আসলে হ্যাঁ এই পিকচারটি মানে সরকার এখানে মই রয়েছে যে মইটি ইউজ করে আপনাকে হেল্প করতে পারে, কিন্তু সেই হেল্পটা না করে শুধু হেল্প করার অজুহাত মানে হেল্প করার বাহানা দেখাচ্ছে যে আমি হাত দিয়ে, জানে যে এই হাত পর্যন্ত পৌঁছাবে না, তারপরেও তো সিস্টেমটাই এইরকম হয়ে গিয়েছে আমাদের। খুবই মানে মিনিংফুল একটি ভিডিও ছিল, যদিও এই ভিডিওটির কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি একমত নই, তারপরেও অনেক মিনিংফুল এবং অনেক ব্রুটাল ট্রুথ
রয়েছে এই ভিডিওটিতে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে আপনার এই যে আপনার ক্রাইম রেট, যদি নিচে, যে থানার ক্রাইম রেট যত নিচে থাকবে সেই থানাকে তত ভালো বলা হবে, সেই অফিসারকে তত পদোন্নতি দেওয়া হবে সেই থানার অফিসারকে। এটি হচ্ছে একটি ব্রুটাল ট্রুথ, যেটির আসলে ডিপ ডাউনে যাওয়া আমাদের প্রয়োজন, কেননা এই থানাতে ক্রাইম রেট এত নিচে গেল কিভাবে সেটি আসলে ইনভেস্টিগেশন করা প্রয়োজন। এই থানার সবাই কি ভালো হয়ে গিয়েছে? এই থানাতে কি কোনো চুরি ডাকাতি নেই, কোনো ক্রাইম হয় না, কেউ কারো জমি দখল করে না, কেউ কারোর সাথে জবরদস্তি করে না? বিষয়টা কি এইরকম, নাকি বিষয়টা ঠিক উল্টো, যে ক্রাইম ঠিকই হচ্ছে, থানাতে অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না কারো সুপারিশ ব্যতীত অথবা টাকা ব্যতীত, থানাতে আপনার অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না, সেই জিনিসটাও আসলে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এই জিনিসটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই ভিডিওটির মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয় সেটি হচ্ছে এই বিষয়টি আমার কাছে মনে হয়েছে। যাই হোক, এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভিডিওটি আসলে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি গিয়ে ওনার চ্যানেলে গিয়ে এই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। উনি আসলে আরও খুব সুন্দর সুন্দর মিনিংফুল কিছু অনেক ভিডিও তৈরি করেছেন, যেগুলো পরবর্তীতে আমরা দেখার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।